office in the Planning Commission, Yojana Bhavan, in September of 1986 and offered me a job. I was there in the Ministry of Industry and he wanted me to join the Planning Commission along with two other economic advisors, Rakesh Mohan and Arvind Virmani. So at the age of 32, I got this senior position in the Planning Commission thanks to Dr. Manmohan Singh. I worked with him in the Planning Commission. And then I worked with him when he was finance minister. Then I worked with him when he was out of power in the Congress party. Then I worked with him when he was prime minister. So for 36 years, I've worked with him very, very closely, very intimately. Very many memories of our association. Well, what can I say? He led a full life. It was a full life, extremely full life. And it was an extraordinarily distinguished life. Chief Economic Advisor, Chief Economic Advisor, Finance Secretary, Member Secretary Planning Commission, Governor Reserve Bank of India, Deputy Chairman Planning Commission, Finance Minister, Prime Minister. I can't think of anybody in India who's had all these posts and filled them with the greatest of distinction. His finance ministership was transformative. He transformed the Indian economy. He was the technocratic master. P.V. Narasimha Rao, of course, was the political master. But Dr. Manmohan Singh was a technocratic sutradhar of the 1991 economic reforms, which transformed Indian trade, transformed Indian industry, and made India the global power that it has become today. As Prime Minister, revolutionary social legislation, Freedom of Information Act, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Forest Rights Act, Right to Education Act, Food Security Act, Land Acquisition Act, revolutionary laws, reservations for scheduled castes, scheduled tribes and OBCs in both public and private educational institutions. These are all, and of course, the Indo-US nuclear agreement, which completely enhanced India's global status. So he was a quiet man, self-effacing, but very dignified, he was the model of humility and integrity, never lost his cool. He was attacked, he was criticized by his political opponents, but he took them in his stride. And many of the initiatives that he had started got repackaged, rebranded, and marketed by his successor. But Dr. Manmohan Singh didn't seem to mind. So he was very relaxed about it. So man of great dignity, man of great, very soft-spoken, didn't raise his voice. And let me say, in today's political context, a man who believed in the politics of consensus, bringing people together, listening to people. He listened more than he talked. And he had no ego. He had no desire to show to the world that I am Dr. Manmohan Singh, who has studied in Oxford, studied in Cambridge, got the Adam Smith Prize in 1956 in Cambridge University. So he was a distinctive, very inimitable, very distinctive contributions Dr. Manmohan Singh has made. He has inspired many economists, many civil servants, many people, and I think he's truly one of the gentle giants. I would call him the gentle giant of Indian politics. Sir, if I remember one thing, once during a press conference he had said that when the history will judge me. He said that history will be kinder to him. And I think the history will be kinder to him, certainly. We had a crazy CAG, who came up with some notional loss, which was a completely bogus loss. We had a hyperactive judiciary, which was crossing the Lakshman Rekha. And I have seen the BJP disrespect him in Parliament. He was not allowed to introduce his Council of Ministers. He was not allowed to speak. He was made fun of. But he took everything in his stride.
never got ruffled, never got agitated, and he always tried to take people along. That's what I think is. He was a decent man. He was a great prime minister. He was a terrific finance minister. But ultimately, he'll be remembered for being a good man, a decent man, a gentleman. सर किस तरीके से देखते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो है उनके निधन हुआ और इस पूरा देश जो है इस वक्त ये देख रहा है कि पूरा देश इस वक्त शोक में है। सभी जो है पार्टियां हों, सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हों, तो सभी सेक्शन सोसाइटी के जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं और इस बात का जो है दुख जाहिर कर रहे हैं। आपने न केवल आप कांग्रेस के महासचिव हैं, चीफ व्हिप हैं राज्यसभा के, आप एक मंत्री भी रहे हैं उनकी सरकार में। तो आपका अनुभव क्या है उनके साथ? कुछ आप अगर आप बुरा ना मारे, मैंने अभी एक वक्तव्य दिया है, तो उस वक्तव्य को मैं पढ़ सकता हूँ, तो आपके सवालों को जवाब मिल जाएगा। एक पूर्णता से भरे और बेहद प्रतिष्ठित जीवन का अंत हो गया है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त सचिव, आरबीआई गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से दोनों के पूर्व छात्र रहे हैं। 1956 में कैम्ब्रिज के प्रतिष्ठित एडम स्मिथ प्राइज उनको दिया गया था। मृदभाषी, शांतिचित्त और हमेशा गरिमा से भरा उनका दृढ़ संकल्प था। ये अपने 1991, 1992 और 1993 के बजटों में उनके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्मेटिव तरीके से बदल दिया। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में देश को ग्रामीण रोजगार, आदिवासी अधिकार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण, प्राथमिक शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण से संबंधित क्रांतिकारी कानून लाए। भारत अमेरिका परमाणु समझौता एक मील का पत्थर था, जिसने भारत को वैश्विक स्तर पर एक नया रूप दिया, एक नया स्थान उनको प्रदान किया गया। उनके कार्यकाल में, और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में, उनके कार्यकाल में जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे अधिक रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे अधिक रहा वो 10 साल जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। वो हृदय से एक सज्जन इंसान थे, एक महान वित्त मंत्री थे, मैं कहूँगा महान प्रधानमंत्री थे और एक सुपर महान वित्त मंत्री थे। पर वो जाने जाएंगे अच्छे इंसान के रूप में। बड़े वित्त मंत्री बनना कठिन काम नहीं है, अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन काम है। बहुत कम लोग राजनीति में हैं। कई लोगों को कहा जा सकता है ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स, महान राजनीतिक नेता हैं, ये महान शख्सियत है। पर सवाल यह है, क्या अच्छा शख्सियत है, क्या डिसेंट शक्ति है? वो सवाल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के संबंध में कभी नहीं उठाया जाएगा। मैंने और भी लिखा है, उनके दिल में किसी के प्रति, और ये आज के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है, मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा हूं, उनके दिल में किसी के प्रति कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं था। वो कठिन परिस्थितियों में भी बातचीत, सर्वसम्मति और सुलह की राजनीति में विश्वास करते थे और उसका पालन करते थे। विनम्रता और सत्यनिष्ठा उनकी पहचान थी। विनम्रता और सत्यनिष्ठा उनकी पहचान थी। आज जो हुकूमत में बैठे हैं उनके बारे में तो ये नहीं कह सकते। जिन लोगों ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, उन्होंने अपना ही असली रंग दिखाया
और कमी नहीं है जिन्होंने मनमोहन सिंह जी की बदनाम की है। जो उन्होंने काम किया प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, उनमें से कई की मार्केटिंग और ब्रांडिंग उनके बाद उस पद पर बैठने वाले के योगदान के रूप में की गई। यानी कि किसने किया नाकाम और किसने जताया नाम। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी बुरा नहीं कहा, वो सिर्फ अपने ट्रेडमार्क अंदाज में मुस्कुरा कर रह जाते थे। मैं सितंबर 1986 में उद्योग मंत्रालय में काम करता था और मुझे एक फ़ोन कॉल मिला मनमोहन सिंह जी से। वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। क्या मेरे साथ काम करोगे? मैं 32 साल का था। क्या मेरे साथ काम करोगे? उन्होंने राकेश मोहन और विरमानी को भी बुलाया था। मैंने कहा सर आप मौका दीजिएगा, मुझे क्या काम करना है? तो उन्होंने कहा आपको एक नई उद्योग नीति बनानी है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी चाहते हैं कि उदारीकरण हो और एक नई औद्योगिक नीति बनने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है और मैं आपको सौंप रहा हूं। मैं 32 साल का था, बस ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गया। सब लोग, सारे लोग, ये कहां से लेटरल एंट्री आके टपका पड़ा, कहां से आया? और मनमोहन सिंह जी ने 1986 में मुझे योजना आयोग में लाए और उसके बाद 36 साल मैंने उनके साथ काम की। सरकार में, राजनीति में, मंत्री के नाते होने के नाते, सलाहकार होने के नाते, सभी अलग अलग अवतारों में उनके साथ मैंने काम किया है। मैं उनको भूल नहीं सकता। अपने अद्वितीय और विशिष्ट व्यवहार से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारे इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। तो आज एक महसूस हो रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो प्रेरणा के स्रोत थे। ज़्यादा बोलते नहीं थे, पर हमेशा बड़ी धीमी आवाज़ से बोलते थे। हमें सुनने को थोड़ा मुश्किल पड़ता था, पर जब बोलते थे ऐसा लगता था कि बस यही रास्ता, हम इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा लॉस है हमारे राजनीति के लिए। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि संसदीय प्रणाली और कार्य प्रणाली की आप बात कर रहे हैं, तो हमें याद है कि शायद प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने 2 दिन फिक्स किए हुए थे दोनों सदनों के लिए। हाँ। अगर मैं गलत नहीं, क्या कुछ वो था? क्योंकि आप नहीं, वो आते थे, बैठा करते थे। वो दिन वो मेरे ख्याल राज्यसभा में मैं तो जानता हूँ गुरुवार आया करते थे। गुरुवार आया करते थे, बैठा करते थे 1 घंटे के लिए। और भी बैठा करते थे। कभी कभी मुझे नोट भेजा करते थे कि आपने ये अच्छा कहा, ये भूल गए, इसके ऊपर आपको जोर देना चाहिए था। पर कैबिनेट मीटिंग में भी सबकी राय सुनते थे, सबकी राय। बोलो आपकी क्या राय है? हालांकि आपका कोई रिश्ता उस विषय से नहीं हुआ होगा, पर सबकी राय लेते थे। 3-4 घंटे चलते थे कैबिनेट मीटिंग, और अंत में प्रधानमंत्री कहते थे अच्छा ये आम सहमति है, ये तो इससे हम आगे चलेंगे। तो एक तरीका था ना, वो कोई 56 इंच की छाती की पर्सनैलिटी नहीं थी उनकी। बड़े विद्वान थे, पर वो किसी को अपने चतुराई या विद्वानता को दिखाने के लिए उस पर उनको कोई दबाव नहीं था। वो छुपा के रखते थे, और जब बोलते थे तब जो उनके मन में विचार आया करते थे वो बहुत प्रभावशाली बन जाते थे। और इसी मैं समझता हूँ सबसे बड़ा योगदान मनमोहन सिंह जी का 1991, 1992 और 1993 प्रधानमंत्री के कार्यकाल के में योगदान तो ऐतिहासिक है, क्रांतिकारी है। पर 1991 में एकमात्र व्यक्ति था जो हमारी अर्थव्यवस्था को बदल सकता था, बचा सकता था, नई दिशा दे सकता था, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह।